ਹੈਲੋ एवरीवन, ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੇਅਰ। आई ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਔਨ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 6 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਮੇजेस ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਮੇजेस ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 2 6 21 ਦੈਨ 88 ਦੈਨ 445। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ, 1 into 1 plus 1 ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, 1 into 1 1 plus 1 is equal to 2। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ 2 ਤਾਂ 6 ਆਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 2 ज़ा 4 plus 2 6। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2 ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 3 ज़ा 18 plus 3 is 21। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 21 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਨਾਲ, 21 into 4 plus 4। ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 84 plus 4 is 88। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ 88 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ 'ਚ 5 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 445 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ 6 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 445 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 6 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 2676। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਆਣਾ ਸੀ 2676। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਬੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਏ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨ ਐਲੋਏ ਆਫ 골ਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਵੇਟ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਲੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਐਲੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ, 골ਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਗ੍ਰਾਮਸ 골ਡ ਹੈ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 80% ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 골ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਐਲੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% 골ਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦਾ 80% ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 ਚੋਂ 40 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਊ ਮਚ 골ਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦ ਐਲੋਏ ਸੋ ਦੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ 골ਡ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਟੂ 90। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ 골ਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 골ਡ ਦੀ ਉਹ 90% ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80%। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ ਲੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਓਕੇ,
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ 골ਡ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ 100 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 골ਡ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ 100 ਹੈ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 90%। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ, मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ x ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ कि 90% ਹੋ ਜੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 40, यानी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜਦੋਂ 골ਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ ਕਰਤਾ 100। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50। ਓਕੇ, ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ खुद कर लियो, ठीक है। इधर 100 लै जाओ, 0 नाल 0 कट होगी, उस तो बाद इत्थे एक्चुअली स्पेस की कमी है तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे x की वैल्यू 50 आ जूगी, ठीक है। हुण देखो इहदे विच x की वैल्यू आई 50। हुण उहने की पुछया कि कितना ऐड करांगे, सो आंसर आ गया कि कितना ऐड किया 50 ग्राम्स, ठीक है। सो मतलब अगर आप 50 ग्राम गोल्ड इस ऐड कर देंगे तो जी गोल्ड की क्वांटिटी होगी 90% हो जाएगी। सो आंसर कितना आया ये ए। ओके, नैक्सट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन्हों मैं पहला रब करदा। एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% एट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% दैन द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द सैकेंड इज। देखो की है, कहता सपोज करो कोई आर्टिकल है वो 2 लोगों को हुंदे होए गया, ठीक है। जो 2 लोगों तो हुंदे होए वो सोल्ड होया तो किन्ने दा प्रॉफिट होया 40% का, जिन्ना कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सी। हुण आपां सब तो पहले इत्थे ला लो कि लैट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस किन्नी सी 100 रुपीज़, ठीक है। 100 लै लिया, ईजी हो जाता कैलकुलेशन, इसलिए आपां 100 लै लैंदे हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट किन्नी सी 100। ओके, सो हुण उहने की कहा है कि जो आर्टिकल पास होया 2 हैंड्स दे विच तां किन्ने सोल्ड होया, किन्ने प्रॉफिट ते 40% ते, ठीक है। हुण आपां नूं पता है कि फॉर्मूला की हुंदा है SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP, है ना, यही फॉर्मूला हुंदा है। सो हुण इत्थे आपां SP कढदे हैं, SP कितना आया 100 इंटू कितना प्रॉफिट परसेंट दिता होया 40% का, डिवाइड किया 100 नाल, इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। ओके, सो अगर आप इन्हूं सॉल्व करांगे 140 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 तक कट जूगा 100 नाल 100, ठीक है। सो फाइनली जी अपनी SP आई है कितनी आई है 140 रुपीज़। हुण देखो उन्होंने क्या कि इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, जो पहला डीलर सी उन्हें 20% कमाया प्रॉफिट, तो आपां ने कढ़ना है कि सैकेंड ने कितना कमाया होगा। एक मैं तुहानूं फॉर्मूला दस रही हूँ, याद रखियो, जिहड़ी फाइनल क्वांटिटी हुंदी है वो किहदे इक्वल हुंदी है, इनीशियल क्वांटिटी कितनी है इंटू 100 प्लस माइनस x डिवाइड बाय 100, ठीक है। x1 x2 जिन्ना मर्जी इत्थे हो सकता है। हुण मैं दस दिया, देखो जी फाइनल क्वांटिटी है उन्होंने आपां किहदे इक्वल लिखते हैं, इनीशियल क्वांटिटी दे इंटू, अगर अपने कोल कोई चीज़ परसेंटेज दी हुई भी इन्ने नाल इनक्रीज हुई है तो आप 100 च वो चीज़ प्लस कर देंगे, अगर दिता हो डिक्रीज हुई है तो उन्होंने डिक्रीज कर देंगे। ओके, सो अगर आप यही फॉर्मूला यूज़ करिए, जिवें इत्थे x1 इत्थे 2 क्वांटिटी दी हुई है तो इत्थे आप x2 भी मल्टीप्लाई च लै लांगे, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दस दिया किवें। उन्होंने कहा कि जी फाइनल अपने को आई है वो कितनी आई है 140, तो फाइनल इतने क्वांटिटी कितनी होगी अपनी 140, ठीक है। इनीशियल क्वांटिटी कितनी सी उरे 100 सी ना, क्योंकि CP 100 तो स्टार्ट की तो SP फाइनली प्रॉफिट तो बाद कितना हो गया 140, तो वो फाइनल क्वांटिटी है इंटू। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट डीलर को गई तो किन्ने परसेंट का प्रॉफिट होया उन्होंने 20% का। सो 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपां ने की करना है कि जो सैकेंड को गई तो प्रॉफिट कितना, सैकेंड का सपोज प्रॉफिट लै लिया आपां ने P। सो आपां ने इत्थे आ जिहड़ा P है इहदी वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, सो ये फॉर्मूले नाल आपां कर सकते हैं। हुण आपां अगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो हुण इहनूं सॉल्व किया, इत्थे ये कट हो गया, ठीक है। जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो अपने कोल इत्थे बन जूगा 14/10 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ओके, सो इन 0 गई 7 ते गया 6 ते गया, इधर आ वाली 0 भी कट होगी, ठीक है। अगर अपन लिखिए 7/6 इज इक्वल टू
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 तो ਇਹਨੂੰ माइनस कर दो यानी कि 1/6 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्ना देयरफॉर ਜਿਹੜਾ P है ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी आई 100 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ गए दिस ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ दो 53 तो मतलब ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट परसेंट है वो कितनी वैल्यू आई 50 डिवाइड बाय 3 तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मिक्स कन्वर्ट करिए 16 2/3% आंसर आ जाऊगा। ओके सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बी। ये तो सी इत्थे तक मैथड 1। अगर किसी को ये वाला मैथड ना समझ आया हो तो मैं थोड़ा एक होर मैथड भी दस देनी है। हुण उन्हें कहा कि फर्स्ट डीलर को गई, ठीक है, अगर फर्स्ट डीलर को गई तो आप फर्स्ट डीलर के लिए पहला SP कढ़ते हैं कि उन्होंने किन्ने दी चीज़ वो आई किन्ने दी सी ते उन्हें अगे बेची किन्ने दी, ठीक है। हुण फर्स्ट डीलर को इत्थे आप कढ़ांगे उन्हें प्रॉफिट कितना दिता है 20% का डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 100 है। सो इत्थे तुहाडे कोल SP आ जूगी फर्स्ट डीलर के लिए। SP कितनी आई इनू कट कर दो तो फर्स्ट डीलर के लिए जी SP आई 120। मतलब जो फर्स्ट डीलर है 100 रुपये की चीज़ नूं उन्हें 20% प्रॉफिट कमा के 120 का बेचा, ठीक है। हुण जिहड़ी फर्स्ट डीलर के लिए सैलिंग प्राइस है वो जिहड़ा सैकेंड डीलर है वो तो कॉस्ट प्राइस हुई, मतलब उन्ने दी उन्हें खरीदी, ठीक है। तो जी सैकेंड डीलर है वो कॉस्ट प्राइस कितनी है 120। वो प्रॉफिट आपने फाइंड करना है कि कितना होया उन्होंने प्रॉफिट परसेंट सॉरी। तो जी फाइनल अपने को सैलिंग प्राइस दी हुई भी उन्हें अगे किन्ने दी बेची वो अपने को किन्नी दी हुई है 140, ठीक है। सो इनू सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाऊगा। सो फॉर्मूला लिखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कितना आया 120 इक्वल्स टू 140, ठीक है। इनू जो तुसी सॉल्व करोगे तो इत्थों भी जो थोड़ा प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाऊगा 16 2/3। हुण तुहानूं मैं 2 मैथड्स दसते जिन्होंने जिमें ईजी लगता है उमें वो कर सकता है। सो हुण इनू पहला सो नैक्सट 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये उन्हें कहा द पॉपूलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 126800। इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाय 20% इन द सैकेंड ईयर। तो पॉपूलेशन दसनी है 2 साल के एंड तक कितनी रहूगी। ओके हुण जिन्होंने याद होवे जिहड़ा मैं दस्सिया सी पिछले क्वेश्चन दे विच फॉर्मूला कि जिहड़ी फाइनल क्वांटिटी हुंदी है वो किहदे कोल हुंदी है इनीशियल क्वांटिटी इंटू 100 दे विच अगर अपने कोल कुछ प्लस दिता है तो प्लस कर देंगे डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है, इंटू अगर अपने कोल जो भी दिता है रिलेशन अगे अगे उमें लिख देंगे जो भी प्लस माइनस अपने कोल दिता है, ठीक है। हुण ये वाले क्वेश्चन च देखो उन्हें की क्या है इनीशियली पॉपूलेशन कितनी सी टाउन दी 126800 इंटू उन्हें क्या फर्स्ट ईयर दे विच पॉपूलेशन इनक्रीज हुई 15% नाल यानी कि 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 115 डिवाइड बाय 100, ओके। तो सैकेंड दे विच उन्हें की क्या है डिक्रीज हुई 20% दे नाल। तो आपने फाइनली दसनी है भी कितना है, मतलब आपने इत्थे फाइनल क्वांटिटी फाइंड करनी है 2 साल बाद पॉपूलेशन की चेंज आया। सैकेंड ईयर च डिक्रीज हुई 100 चो 20 माइनस कितने 80, ओके। सो इनू जो तुसी सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 116656, ओके। टाइम बहुत लग जाता इसलिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रही, तुसी खुद कर लियो। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो आऊगा C, ओके। सो नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5th 2186 है डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सनस ABC। हुण अपने कोल किन्ने पैसे हैं 2186 वो अपने 3 जानिया दे विच डिवाइड किते ABC, ओके। इफ द मनी गिवन टू दैम इज डिक्रीज बाय हुण जिहड़ी मनी A नूं दित्ती है उन्होंने आपां 26 नाल घटा दईए, जिहड़ी B नूं दित्ती है उन्होंने 28 नाल घटा दईए ते जिहड़ी C नूं दित्ती है उन्होंने आपां 32 दे नाल माइनस कर दईए। दा जिहड़ी मनी उन्हां नूं मिलूगी वो किन्नी रेशो च मिलूगी 9:13:8, ओके। तो आपने दसना है कि A नूं किन्नी अमाउंट दित्ती गई। हुण इत्थे ध्यान ये रखना है देखो जिन्नी अमाउंट अपने कोल टोटल सी उहदे विचों आपने कुछ माइनस किया उस तो बाद अपने कोल रेशो आई हुई है, यानी कि जिहड़ी अपने कोल आह क्वांटिटी है अगर जिहड़ी इन्हां दी आपां माइनस कीती है हर एक चो इंडिविजुअली उहदा टोटल लैके आपां आह वाली क्वांटिटी चो ही माइनस कर दिए तो अपने कोल एग्जैक्ट रेशो आ जूगी ना कि किन्ने च उन्हां च असल च डिवाइड हुई है। तो आपां इहनूं किवें लिखांगे कि एक्चुअल चाह कड्ढण दे लई भी जिहड़ी अमाउंट इन्नी रेशो च डिवाइड हुई है वो कड्ढण दे लई आपां की करांगे 2186 दे विचों माइनस कर दांगे किनू 26 नूं प्लस 28 प्लस 32, ओके। माइनस मैं कॉमन ले लिया मतलब तिन्हां नूं माइनस किया है। जो आपां इहनूं माइनस करांगे तो फाइनली अपने कोल इत्थे कितना आ जाऊगा 2100 बिकॉज इहदा सम तुसीं देखोगे 86 बनूगा। तो अपने कोल कितनी आ गई 2100 आ गई, ठीक है। यानी कि 2100 नूं हुण आपां ने ABC दे विच
9:13:8 डिवाइड किया तो हुण आपां ने कढना है कि ए नू कितना अमाउंट मिलिया। हुण देखो हुण ए दा कढना है कि ए नू किन्ने पैसे मिले। जिन्हां ने रेशो वाला चैप्टर पढ़िया होवे आपां किवें करांगे, हुण अपने कोल जिन्नी टोटल क्वांटिटी है उहदी रेशो लै लांगे। ए कोल किन्नी है 9 तो टोटल अगर आपां नू सम करिए 30 बनूगा। ठीक है, सो इनू कट दो। इत्थे कितना आ गया अपने कोल 630। ओके, इत्थे 3 ते गया था 630 आ गई। हुण देखो कईयां नू लगूगा कि 630 ही आंसर आया है, बट याद रखो आपां ने ए दा 26 रुपीज़ माइनस भी किते सी तां ये रेशो आई सी। ਇਹਦਾ मतलब फाइनल ਇਹਨੂੰ किन्ने पैसे मिले हैं ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 630 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 रुपीज़ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ बिकॉज ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ माइनस किते। सो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ किन्ने पैसे मिले 656। ओके, सो आंसर क्या होगा क्वेश्चन ਦਾ सी। ओके, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। ਹੁਣ नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो 6th क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज टू बी मेड 1:2 तो दसना कि कितना वाटर है जो ऐड किया गया मिक्सचर दे विच। ओके, हुण देखो अपने कोल की है 60 लीटर कोई मिक्सचर है। ठीक है, ये आप इनीशियल केस की गल कर रहे हैं। ये अगर आप देखिए जो एसिड तो वाटर है वो रेशो कितनी दी हुई है 2:1। सो सिमिलरली 60 नूं आपां अगर करिए एसिड की कड्ढी है तो कितना होगा 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 60 यानी कि 20 ते गया, यानी कि एसिड कितना है 40 लीटर्स तो जो वाटर है वो कितना आया 20 लीटर्स। ओके, ये हो गया केस 1 जो इनीशियल दिता होया। हुण अगर आप फाइनल केस कड्ढिए, फाइनल दे विच भी 60 लीटर्स है। ठीक है, उहदे विच अपने कोल एसिड ते वाटर की जिहड़ी रेशो है वो कितनी दी हुई है 1:2। यानी कि अगर आप इत्थे फाइंड करांगे कितना होगा 20 लीटर्स है तो जो एसिड है वो अपने कोल 40 लीटर्स है, सॉरी वाटर है जो 40 लीटर है फाइनल केस दे विच। ठीक है, हुण आपां ने कढना है कि वाटर कितना ऐड करिए ताकि जिहड़ी रेशो है वो 1:2 हो जाए। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन दे विच। हुण देखो वो करन दे लई आपां की करांगे, आपां एसिड दी अमाउंट सेम कर दांगे दोनों दे विच, तां ही आपां नूं पता लगू कि वाटर किन्ने नाल इनक्रीज़ होया। उरे 40 है उरे 20 है, अगर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करा तो 40 बन जूगा, यानी कि 40 उरे अगर इत्थे 2 नाल किया तो इत्थे भी मैनू करना पऊगा तो इत्थे कितना आ गया 80। यानी कि वाटर का पहला कितना सी 20 लीटर्स तो हुण फाइनल केस च कितना 80 लीटर तो कितना इनक्रीज़ आया 60 लीटर्स आया। सो 60 लीटर वाटर आपां ने होर ऐड किया। ओके, सो इसदा आंसर क्या आना सी बी। सो ये सी मैथड 1। हो सकता है कईयां नूं ये चीज़ समझ ना आई होवे तो मैं एक होर मैथड तुहानूं दस दिंदी हां। ठीक है, ये हले तुसीं जस्ट इनीशियल केस देखो, फाइनल नूं हले भुल जाओ। इनीशियल दे विच आपां कढ लिया कि एसिड कितना 40 लीटर तो वाटर कितना 20 लीटर्स। ओके, हुण उन्होंने कहा कि आपां वाटर कितना ऐड करिए ताकि रेशो जिहड़ी है वो 2:1 होवे। सो हुण आपां लै लांगे कि लैट आपां ने x लीटर वाटर नूं ऐड किया। ठीक है, हुण वाटर इनीशियल सी 20 लीटर, 20 दे विच भी आपां नूं x प्लस करना पऊगा डिवाइड बाय अपने कोल टोटल क्वांटिटी कितनी है 60 दे विच भी आपां नूं x नूं ऐड करना पऊगा ताकि जिहड़ी फाइनल दे विच क्वांटिटी आवे कितनी आवे 2:3। ओके, जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो फाइनली इत्थों भी तुहाडे कोल x की वैल्यू कितनी आ जूगी 60 लीटर्स। सो तुसीं एवें भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इत्थे लीटर लिखण की जरूरत नहीं है, इत्थे तुसीं इहनूं एवें भी सॉल्व कर सकते हो तो ये वाले मैथड नाल भी कर सकते हो जिवें तुहानूं ईजी लगदा है। ओके, सो 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक तुसीं एक गल नोट कर रहे होंगे, जो भी मैं तुहानूं दस्से सी टॉपिक्स कि पढ़ लो, इन्हां विचों क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वही टॉपिक्स चो आए हुए हैं। ओके, सो विश्वास रखा करो। सो 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें 92 डेज़ दे विच काम कंप्लीट करना सी ते किन्ने उन्हें मैन अपॉइंट किते काम करन लई 234। ओके, ते किन्ने घंटे उन्होंने काम किया 16 आवर्स अ डे। मतलब टोटल ये सिचुएशन सी कि इन्ने हो जाना चाहिए सी, बट की होया जिन्ने भी बंदे से उन्होंने 66 डेज काम किया, उस तो बाद उन्होंने देखा भी जस्ट 4/7 वर्क ही कंप्लीट होया। ओके, मतलब 4/7 होया तो बचा कितना 3/7 वर्क हले पे है। तो इस पूछा गया है हाउ मैनी एडिशनल मैन मे बी इंप्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो एडिशनल मैन किन्ने अपॉइंट किए जान ताकि जोड़ा काम है वो टाइम ते कंप्लीट हो जाए। तो किन्ने घंटे काम करनगे वो 18 आवर्स अ डे। जोड़ा ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली चेन रूल दे नाल रिलेटेड है। ओके, चेन रूल दे विच कितना होंदा है
जिमें अपने कोल किन्ने बंदे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ परसनस एम लै लिया उन्होंने, इंटू किन्ने आवर्स काम कर रहे हैं तो उन्होंने किन्ने दिनों लिए काम किया। ये चीज़ किहदे इक्वल हुंदी है, वर्क दे। टोटल वर्क कड्ढण दे लई आपां की करांगे कि किन्ने बंदियां ने किन्ने दिन किन्ने घंटियां दे लई काम किया। ओके, हुण अगर आपां इहनूं जिवें अपने कोल ए वाला वर्क आ गया, ठीक है, इनू बेसिकली ना एवें लिख देंगे हैं जिवें अपने कोल दो दिते हुए हैं, M1 इंटू H1 इंटू D1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू कि इक्वल आ जाऊगा M2 इंटू H2 इंटू D2 डिवाइड बाय वर्क 2। ठीक है, अगर आप इधर लै लिए 1 दे इक्वल कर दिए तो इक्वल करके ये चीज़ बन जाऊगी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल च नहीं जा रहे। हुण क्वेश्चन ते वापस आ रहे हैं, उन्हें कहा कि 66 डेज काम किया, यानी कि आप इत्थे लै लैंदे हैं कि जिहड़े डे 1 है D1 की वैल्यू कितनी है 66। ओके, D1 दे विच जिहड़ा वर्क 1 कंप्लीट होया है वो कितना होया 4/7। उस तो बाद तो जिहड़े मैन है वो किन्ने ने जिन्हों ने काम किया है वो तो 234 ही ने। ठीक है, तो टाइम उन्होंने कितना काम किया 16 आवर्स। तो ये अपने को फर्स्ट केस की कंडीशंस बन गया। हुण सैकेंड कंडीशन कढ़ते हैं, टोटल डेज सी 92। ठीक है, बट काम किन्ने दिन हो चुका 66 डेज। तो जिहड़ा रिमेनिंग वर्क है W2, हुण अगर आप टोटल दे विचों जिवें टोटल W है उहदे विच आपां ने 4/7 माइनस करता तो अपने कोल कितना बचा 3/7 वर्क बचा। यानी कि जिहड़ा 3/7 वर्क है 66 डेज 92 चो लंघ चुके तो बचे किन्ने, तो D2 की वैल्यू कितनी आऊगी 92 माइनस 66 तो कितना होगा 26 आई थिंक। ओके, उस तो बाद हुण उन्होंने की किया कि किन्ने घंटे काम करते हैं वो 18 आवर्स अ डे। ठीक है, हुण इहदे विच उन्हें कहा कि एडिशनल मैन किन्ने चाहिए ने ताकि जिहड़ा वर्क है वो टाइम ते कंप्लीट हो जाए। आपां लै लिया कि X एडिशनल मैन है, यानी कि इत्थे जिहड़े परसनस आ गए M2 वो किन्ने आ गए 234 तो हैगे ही हैं, उहदे विच आपां ने कुछ X एक्सट्रा बंदे जोड़ लिए। ओके, हुण इहदे विच आपां वैल्यूज़ फिल कर दिंदे हैं। M1 दे विच कीती 234 इंटू टाइम किन्ना इत्थे H लै लो या T लै लो जो भी लैना है। ठीक है, 16 इंटू D1 किन्ना आ गया 66। वर्क किन्ना उरे उरे वर्क होया सी 4/7 कंप्लीट। ठीक है, इक्वल्स टू इत्थे आपां की लिखांगे 234 प्लस X कढ़ने हैं कि किन्ने होर बंदे आए इंटू 18 आवर्स काम हो रहा है 26 डेज के लिए तो काम किन्ना है 3/7 W। ठीक है, इत्थे W दे नाल W कट जूगा, 7 नाल 7 उड़ गया। जो भी तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ी X की वैल्यू आऊगी सॉल्व करन तो बाद वो किन्नी आ जाऊगी, वो आ जाऊगी 162। ओके, यानी कि 162 होर परसन है जिन्होंने अपॉइंट किया गया ताकि काम टाइम ते कंप्लीट होए। ठीक है, तो मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आना ए। इन्हों मैं थोड़ा रब कर देनी है। ये आंसर कितना आया अपने को ए। ठीक है, ऊपर वाले का बी से रब हो गया। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये सी आंसर आया सी है ना। सो नैक्सट देखो 8th क्वेश्चन, इफ 2 पाइप्स फंक्शन टुगैदर द टैंक विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। अपने को 2 पाइप्स हैं P1 तो P2। अगर ये दोनों कट्ठियां काम करदियां ने तो जिहड़ा टैंक है वो कितनी देर च भर जाता है 12 आवर्स। 1 पाइप फिल द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर दैन द अदर। देखो अगर पाइप 1 नू X आवर्स लगे तो जिहड़ी दूजी है वो की करूगी X चो 10 घंटे घटा दो, मतलब 10 आवर घट लऊगी पानी नू फिल करन दे लई, तो आपां 10 X चो 10 आवर्स माइनस करते दूजी पाइप लई। ठीक है, तो उन्हें कहा कि हाउ मैनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द टैंक। तो फास्टर पाइप ने किन्ने घंटे लिते, फास्टर पाइप केड़ी हुई P2, बिकॉज अगर पहला ने सपोज 30 लिते तो फास्टर किन्नी लै रही है 30 चो 10 माइनस किते 20। ठीक है, तो ये वाली फास्टर हुई बिकॉज टाइम घट लै रही है तो वही एफिशिएंसी ज़्यादा है। हुण इहनूं आपां किवें करांगे, इहनूं सॉल्व करन दा एक बड़ा वधिया तरीका हुंदा है 1/12 इज इक्वल टू 1/P1 लै लो प्लस 1/P2 जिहड़ा भी टाइम है। ठीक है, 1/12 इज इक्वल टू P1 नू किन्ने X आवर्स लगे हैं, P2 नू किन्ने लगे हैं X माइनस 10। ठीक है, तुसीं इहनूं सॉल्व कर लो 1/12 इज इक्वल टू X माइनस 12 प्लस X डिवाइड बाय X माइनस 12। जो भी आप इहनूं सॉल्व करांगे तो अपने कोल X की इत्थे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगियां, एक वैल्यू आऊगी 4 तो एक वैल्यू आऊगी अपने कोल 30। ओके, 4 तो हो नहीं सकती, सो इत्थे आपां 30 नू कंसीडर करांगे। ठीक है, यानी कि X की वैल्यू आई 30 तो 30 दे विचों 10 माइनस किया तो जी पाइप 2 है वो किन्ने च फिल कर रही है 20 आवर्स दे विच।
सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर है जोड़ा वो की आना सी 20 यानी कि ए। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को। सो नैक्सट क्वेश्चन की क्या गया, दो कार्स हैं, ठीक है, वो एक दूजे की तरफ आ रही ने, केड़ी जगह तो कोई दो प्लेसिस हैं वो 88 किलोमीटर दूर है, तो उतो दो कार्स चल रही ने, जिमें एक कार ए लै ली, एक कार लै लो बी, ठीक है, एक दूजे की तरफ आ रही ने। इफ़ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ए एंड बी इज़ 5:6, यानी कि अगर ए कार 5x नाल चल रही है तो बी कार किन्नी नाल चलूगी 6x के नाल। एंड द स्पीड ऑफ कार बी एंड 90 किलोमीटर, इत्थे एंड मेरे ख्याल गलत दिता होया है, इत्थे एंड नहीं आना चाहिए, इज आऊगा, ठीक है, कि जी कार बी है उसकी स्पीड किन्नी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो उन्हें क्या आफ्टर वट टाइम विल दे मीट ईच अदर, तो किन्ने टाइम बाद वो मिलणगे। बेसिकली क्वेश्चन की है दो अपने को जगह ने जिन्हों के डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, ठीक है, वो दोनों जगह तो एक कार चली एक दूजे की तरफ, तो आपने यह दसना है कि कितना टाइम है जो वो एक दूजे को मिलणगियां, ठीक है, ये मतलब है क्वेश्चन का। हुण देखो अगर अपने को 6x की वैल्यू दी हुई है 90, तो आप इतों x की वैल्यू कढ़ लाँगे, 90 को 6 नाल डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना होया 230, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है, सीधा आपने कढ़ लिया कि x की वैल्यू 15। हुण ये बेसिकली क्वेश्चन की कहा गया है कि दो प्लेस एक दूजे तो 88 किलोमीटर दूर है, उन्होंने दोनों प्लेस तो एक कार चली एक दूजे की तरफ, तो आपने दसना है कि वो दो कार्स हैं जिहड़ियां वो किन्ने टाइम बाद मिलणगियां, ठीक है। हुण ये चीज़ नूं कड्ढण दे लई तुहानूं एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपां पता है कि स्पीड की हुंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अगर आप टाइम इधर लै जाइए तो मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। हुण ये वाले केस दे विच दो कार एक दूजे की तरफ आ रही ने, मतलब उरे आपां किहड़ी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उरे आपां रिलेटिव स्पीड का कंसैप्ट यूज़ करांगे, ठीक है। ये की होंगे कि जो टाइम ऑफ मीट है वो कि इक्वल आऊगा टोटल डिस्टेंस ते आपस दोनों व्हीकल्स दे विच रिलेटिव स्पीड कितनी है, ठीक है। जी रिलेटिव स्पीड है अगर दो चीज़ा एक दूजे के ओपोजिट आ रही ने तो प्लस होंगी है, अगर सेम डायरैक्शन च जा रहे हैं तो माइनस होंगी है, ठीक है। हुण ये वैल्यूज फिल करो, टोटल स्पीड कितनी आ गई, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 88 किलोमीटर डिवाइड बाय, हुण यदि 5x दी हुई है यदि 6x दी हुई है, क्योंकि अपन x की वैल्यू फाइंड कर ली सी तो आप इतने x की वैल्यू पुट करके भी कढ़ सकते हैं, बट वो तो भी ईजी मैथड की है 5 + 6 कर दो, टोटल कितना हो गया 11x, x की वैल्यू उरे फिल कर दो 15, तो 88 11 × 15, ठीक है, इतने कितना आया 8/15 आवर्स आ गए। हुण अगर आपने आवर्स नूं मिनट्स कन्वर्ट करना है तो किमें करांगे, आपां पता है 1 आवर = 60 मिनट्स, ठीक है, तो 8/5 15 × 60, ठीक है, इतने कितना गया 4 तो कितना आंसर आ गया 32, यानी कि जी दोनों कार्स हैं वो आपस 32 मिनट्स बाद मिलणगियां। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आना सी डी। आई होप थोनू समझ आ गया होवे। 10th क्वेश्चन है, अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons वॉकिंग अलॉन्ग अ रेलवे ट्रैक, कोई ट्रेन है 2 पर्सन रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग जा रहे हैं, ट्रेन ने उन्होंने ओवरटेक किया। द फस्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो सैकेंड वन है जोड़ा वो 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं। द ट्रेन नीड्स 8.4 seconds and 8.5 seconds respectively to overtake them. What is the speed of the train if both the persons are walking in the same direction as the train? Okay, जिमें सपोज करो ये हैगा पर्सन 1, ये हैगा पर्सन 2, दोनों इधर जा रहे हैं, ठीक है। हुण देखो उन्हें स्पीड अपने को अलग अलग दी हुई है, जोड़ा पर्सन अगे है ओबवियसली उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यदी स्पीड कितनी है 5.4 किलोमीटर पर आवर, तो जोड़ा सैकेंड पर्सन है यदी स्पीड कितनी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन भी इधर जा रही है, हुण जिहदी स्पीड ज़्यादा है ट्रेन उन्होंने क्रॉस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगी, यानी कि जिहदी स्पीड 5.4 है उन्होंने ओवरटेक करने के लिए ट्रेन ने कितना टाइम लिता 8.5 सेकेंड्स, ठीक है, तो जिहदी स्पीड घट है उन्होंने लिता 8.4 सेकेंड्स, ठीक है। ये ट्रेन है इधर जा रही है। हुण देखो ये की है, ये भी बेसिकली ट्रेन भी इधर जा रही है, पर्सन भी इधर जा रहे हैं, ठीक है। हुण आपां की फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है कि ट्रेन की स्पीड की है। लैट लै लो कि जी ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है, ठीक है। हुण अगर आप फस्ट पर्सन का केस कंसीडर करिए तो क्या होगा, टाइम ऑफ
नीट मतलब 8.4 इज इक्वल टू इत्थे लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन नहीं है, सो आप एल कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ां सेम डायरैक्शन च जा रही ने, तो अगर आप इहदी रिलेटिव वेलोसिटी लवांगे तो की आऊगी माइनस आऊगी ना। सो ट्रेन की स्पीड तो बंदे की स्पीड चों ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, सो आप इत्थे एक्स चों माइनस करांगे 4.5, ये होया परसन 1 दे लई। और तो बाद सैकेंड दे लई केस की बनूगा 8.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स माइनस 5.4, ये होया सैकेंड दे लई केस। ओके, हुण इहनूं तुसीं इधर लै जाओ मल्टीप्लाई दे विच, तो एल दे इक्वेट ये दोनों चीज़ां जदों आपां कीतियां तो फाइनली, ठीक है, इत्थे मैं तुहानूं लिख के भी दिखा दिंदी ना, आप एवें लिख सकते हैं ना दोनों इक्वेशनस नूं 8.4 एक्स माइनस 4.5 इक्वल्स टू 8.5 एक्स माइनस 5.4, एवें दी कंडीशन बन जूगी, ठीक है। जदों आपां ने इहनूं सॉल्व किया तो फाइनली सॉल्व करन तो बाद जिहड़ा अपना आंसर है वो आऊगा एक्स इज इक्वल टू 81, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि जी ट्रेन है वो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रही है। सो आंसर क्या होगा डी। 11th क्वेश्चन है, उन्हें क्या द सम ऑफ अ नंबर एंड इट स्क्वायर इज 20, आई थिंक इतने 20 होगा, ठीक है, थोड़ा विजिबल नहीं हैगा, सो आप 20 मन के चलते हैं। आप लै लिया लेट नंबर है एक्स, बेसिकली ये वाले क्वेश्चन दे विच अपने कोल कोई नंबर है, ठीक है, ओहदे स्क्वायर का सम दिता होया 20, तो आप नंबर फाइंड करना है। इत्थे आपने नंबर लेट कर लिया एक्स, इत्थे नंबर लिख लिया तो नंबर का स्क्वायर लिख लिया तो उन्होंने किहदे इक्वेट करता 20 दे, ठीक है। इत्थे इक्वेशन बन गई, इनू इधर लियाओ, आई थिंक तुहानूं फैक्टोरियल मैथड नाल इनू सॉल्व करना आंदा ही होगा। 20 लिख के 4 5 20 ना, यानी कि अपने कोल ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिन्होंने अगर आप सम करिए, ठीक है, तो अपने कोल 1 आवे, तो अगर आप उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो -20 आवे, ठीक है। अगर आप 5 ते -4 ऐसे नंबर लै लें तो गल बन जूगी, ठीक है, बिकॉज 5 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन रहूगा सम करन तो बाद भी। इन्हों आप की लिखांगे +5x -4x -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इत्थे कितना आ गया x +5, इत्थे -4 कॉमन लै लो x +5, तो x -4 x +5 इक्वल्स टू 0, तो एक नूं पहला इक्वल किया 0 दे, तो इत्थे x की वैल्यू कितनी आई 4। जो आपने सैकेंड x +5 नूं 0 दे इक्वल किया तो इत्थे x की वैल्यू कितनी आई -5, ठीक है। तो उन्हें पूछा कि नंबर की हो सकता है, तो ऑप्शन ए करैक्ट है कि या तो -5 हो सकता है या 4। अगर इत्थे 20 सम दिता है तो आंसर ए आऊगा। एक बार चैक कर लियो कि क्वेश्चन दे विच 20 है या कुछ होर है। ओके, सो नैक्सट, सो ये उन्हें क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द राइस इनक्रीज बाय 20% देन हाउ मच परसेंट शुड, ये ना बेसिकली यही पूछा होंगे है कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, वो प्राइस किसी जिमें X% दे नाल इनक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अपना जो बजट है वो फर्क ना पवे, वो सेम रहे, तो आप कंजम्पशन किन्ने % दे नाल डिक्रीज करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दे विच भी यही चीज़ पूछी गई है, थोड़ा जी स्टेटमेंट ऑफ क्लीयर नहीं है इसलिए मैं उन्होंने रीड नहीं कर पा रही अच्छे तरीके दे नाल, बट मैं तुहानूं दसता कि यही चीज़ होगी ये, ठीक है। हुण उहदे विच एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो अपने को ऐं दिता हो कि किसी चीज़ की प्राइस इनक्रीज हो रही है X% दे नाल, तो आप कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करिए ताकि जोड़ा एक्सपेंडिचर अपना या बजट जोड़ा हैगा अपना ना हिले, ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम रहे या बजट अपना जोड़ा है वो सेम रहे जिमें पहला सी। तो उहदे लई आपां फॉर्मूला की यूज़ करांगे X% डिवाइड बाय 100 + X% × 100। अगर प्राइस इनक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप इत्थे माइनस लैने होंगे हैं, ठीक है। सो ये वाले फॉर्मूला आप पुट किया एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 100 + 25 × 100, तो इत्थे कैंसल कर दो कितना आ जाऊगा 25 125 × 100, 25 × 5 125, ठीक है, तो इनू कितना 20। सो मतलब आपां नूं 20% दे नाल कंजम्पशन डिक्रीज करनी पऊगी ताकि बजट है जोड़ा वो सेम रहे। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बी। ओके, सो नैक्सट 13 तो लैके 16 क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, उन्होंने देखते हैं। ये उन्हें दिता है परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज X एंड Y ओवर द गिवन ईयर्स। प्रॉफिट परसेंट जोड़ा है इतने उन्हें क्या होया कि प्रॉफिट परसेंट के लिए आपने केड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर × 100। ये फॉर्मूले ते ही सारा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। देखो
सब तो पहला 13 क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई इज 2010 वर इन द रेशो 3:4। अगर आप 2010 की गल कर रहे हैं, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ एक्स ਤੇ वाई है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:4 'ਚ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर एक्सपेंडिचर। ਇਨਕਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ EX ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ EY, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ एक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ एक्स है, ਆਹ ਵਾਲਾ एक्स है, ਇਹ ਵਾਲਾ एक्स है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ y। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ एक्स है ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 65 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ एक्स ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 3x ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3x। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ EX डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंटू 100। तो पहली स्टेटमेंट बना ली। सैकेंड अगर आप वाई का केस लीए 2010 च उन्होंने कितना प्रॉफिट होया 50 इज इक्वल टू कितनी इनकम है 4x माइनस EY डिवाइड बाय EY इंटू 100। ओके, सो जो तुसी इहनूं सॉल्व करोगे, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ EX ਬਾਈ EY ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਊਗੀ, ठीक है। जी EX बाई EY की रेशो आऊगी इनू सॉल्व करने तो बाद वो आऊगी फाइनली 15/22। ओके, सो ये आंसर आना सी C। इनू खुद सॉल्व कर लियो बिकॉज नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाऊगा। मैं थोड़ा दस दिनी है, ये 100 नू 65 के नीचे लै जाओ तो पूरी स्टेटमेंट में तुसी EX नाल डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं इत्थे एक लिख के दिखा देनी ताकि तुहानू ईजी रहे करन। 65/100 इज इक्वल टू इत्थे मैं इनू लिख सकती हाँ ना 3x डिवाइड बाय EX -1, इधर लाओ +1 हो जाऊगा, ठीक है। तो EX ते EY की जी रेशो है वो एक्स की फॉर्म च आ जाऊगी तो फाइनली एक्स कट हो जाएगा, उमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और तो बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2007 वाज 220 करोड़, वट इज़ द इनकम इन 2007। देखो हुण आपां 2007 दे विच कंपनी वाई का पहला प्रॉफिट देखते हैं कितना है आ रहा 2007, आ है कंपनी वाई कितना आ गया इत्थे 35 इक्वल्स टू, ठीक है। ये इनकम लै लो आई माइनस एक्सपेंडिचर कितना दिता होया 220 डिवाइड बाय 220 इंटू 100। सो इत्थों थोड़ी आई की वैल्यू आ जाऊगी, ठीक है। बेसिकली 14 दे विच जिहड़ी आई की वैल्यू आऊगी वो आऊगी 297 करोड़, ठीक है। सो बी आंसर आ जाऊगा। और तो बाद सो नैक्सट 15th क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन द ईयर 2008 वॉज 200 करोड़। देखो यानी कि 2008 दे विच जिहड़ी कंपनी एक्स है उहदा एक्सपेंडिचर कितना है 200 करोड़, ठीक है। एंड द इनकम ऑफ कंपनी एक्स इन 2008 जिहड़ी इनकम है कंपनी एक्स की 2008 दे विच, ठीक है, वो किहदे इक्वल है एक्सपेंडिचर दे, एक्स कंपनी दे एक्सपेंडिचर दे 2011 दे विच। ओके, द इनकम ऑफ एक्स इन 2011 तो आपने इनकम करनी है एक्स की 2011 दे विच कितनी है। देखो हुण 2008 दे विच आपां नूं पता है उहदा एक्सपेंडिचर कितना है इन्ना, तो आपां 2008 दे विच इनकम एक्स की सपोज कर लैंदे हैं कि अपने कोल की है ए या आई लै लो, ईजी रहूगा, ठीक है। ए लैन की बजाय इत्थे आपां आई लै लैंदे हैं, कितनी है आई। हुण आपां कहते हैं इनकम कितनी है आई, तो इत्थे फॉर्मूला लगाओ 2008 दे विच अगर आपां एक्स का प्रॉफिट देखिए, ठीक है। सो इत्थे लिख लिया 55 इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। सो इत्थे अपने कोल की है आई की वैल्यू आ जाऊगी, आई की वैल्यू सॉल्व करने तो बाद आई 310, यानी कि इनकम जी एक्स है 2008 जो कितनी सी 310, तो 310 ही वह 2011 दे विच एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपने 2011 दे विच एक्स की इनकम कढ़नी है। सो इत्थे इनकम लैट कर ली आपने आई डैश, ठीक है। तो इत्थे भर दो 2011 दे विच एक्स नूं कितना प्रॉफिट है 60। ओके, सो
सो 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 50। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 50 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ आई डैश माइनस एक्सपेंडिचर इन्ना इंटू 100। सो आई डैश की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 465 करोड़। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आना सी ए। ओके सो नेक्स्ट देखो 16 की क्या है, इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल इन 2009 जिहड़ी इनकम है एक्स की इक्वल टू इनकम है वाई की 2009 दे विच। ओके then what was the ratio of expenditure of company X to company Y in 2009। इनकम इक्वल दी हुई है, इन्हों आप लै लें कि दोनों की इनकम आई दे इक्वल है, तो आपने एक्सपेंडिचर की रेशो करनी है। ठीक है आप लै लिया एक्सपेंडिचर 2009 एक्स का हैगा EX ठीक है, तो वाई का लै लिया आपने एक्सपेंडिचर है EY। हुण आप इत्थे प्रॉफिट वाला यूज़ करते हैं 2009 दे विच देखो 2009 जिहड़ा एक्स है उन्होंने कितना होया 50, तो पहली की बनूगी 50 इज इक्वल टू इनकम माइनस EX डिवाइड बाय EX इंटू 100। और तो बाद 2009 दे विच अगर आप वाई की गल करिए तो वाई नू कितना होया 60। ओके सो 60 इक्वल्स टू इनकम माइनस EY डिवाइड बाय EY इंटू 100। ਹੁਣ जो तुसी ये वाले क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करोगे ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ तरीके आई नाल इक्वेट कर लियो, तो ਇਹਨੂੰ सॉल्व करन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आऊगा वो आऊगा डी। ओके ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लियो बिकॉज टाइम बहुत लग जूगा इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही। ठीक है जिवें तुहानूं दस्सिया सी 1 वाला करके एक एक नूं सॉल्व कर लियो हो जाऊगा। सो नैक्सट आपां 17th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये विच उहने क्या है किसी लेडी दे वल इशारा करदे होए कोई बंदा कह रहा है कि जिहड़ा सन है उसदे ओनली भाई दा ठीक है कोई लेडी है, इत्थे चलो आप नाल नाल ड्रॉ करते हैं ट्री, जिवें आह लेडी है ठीक है जिहदी मैन गल कर रहा है, वो लेडी दा जिहड़ा ब्रदर है, लेडी दा इत्थे ब्रदर बना लिया, लेडी दे ब्रदर दा जिहड़ा बेटा है ठीक है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। जिहड़ा बेटा है वो ब्रदर है किहदा वाइफ दा मैन दी। ठीक है मैन है, मैन दी वाइफ है, वाइफ दा ब्रदर है। ठीक है ये अपने को बेसिकली फैमिली ट्री बन गया। उन्होंने पूछा हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मैन। हुण ये तो बन गया अपने को फैमिली ट्री। हुण इहनूं सॉल्व करते हैं। देखो जिहड़ा लेडी दा ब्रदर है वो मैन दी वाइफ दा की लग गया फादर। ठीक है तो मैन दा की लग गया फादर इन लॉ। ठीक है सो जिहड़ी लेडी है वो मैन दे फादर इन लॉ दी सिस्टर हुई। ठीक है सो आंसर क्या होगा सी। सो जिहड़ा इहदे विच 18 ते 19 क्वेश्चन है उहदी स्टेटमेंट इन्नी विजिबल नहीं है। ठीक है सो ये वाली तुसीं मैनूं जिन्हां ने भी पेपर दिता सी कमेंट सैक्शन च दस देण कि इहदी प्रॉपर स्टेटमेंट की है। सो नैक्सट वीडियो दे विच इहदे क्वेश्चनस आपां सॉल्व कर। सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इहदे नाल रीजनिंग ते मैथ्स से जिहड़े क्वेश्चनस आ खत्म हो जाएंगे, बाकी लैक्चर दे विच बचे हुए पार्ट्स डिस्कस करांगे। सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इहदे नाल जिहड़े रीजनिंग ते मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बाकी जिहड़े भी पार्ट्स बच के वो नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। ओके हुण देखो इहदे विच उहने कि मिरर इमेज दसो। मिरर इमेज दे विच याद रखने है कि जिहड़ी चीज़ टॉप ते है जिवें वो टॉप ते रहूगी। ठीक है जिहड़ी चीज़ बॉटम ते वो बॉटम ते होगी, बस वो लैफ्ट ते राइट साइड है जिहड़ी वो चेंज हुंदी है। हुण अगर आप मिरर नूं ध्यान नाल देखिए जिन्हों टॉप बॉटम का नहीं भी याद रहिंदा, बस ये याद रखो कि टॉप की तो टॉप ते है, बॉटम की बॉटम ते है। ठीक है साइड का किवें याद रखना, जिहड़ी चीज़ मिरर दे कोल है, हुण जिवें आह अगर मिरर लगाता तो आ वी है जिहड़ी फिगर दी इहदे कोल है, तो जिहड़ी मिरर इमेज है उहदे विच भी जिहड़ी वी है वो मिरर दे कोल आऊगा। ठीक है सो ये वाला भी कैंसल हो गया, ये वाला भी कैंसल हो गया। हुण आपां देखते हैं कि इन्हां दोनों विचों किहड़ा होगा। देखो मैं दसिया जिहड़ी चीज़ टॉप ते है वो हमेशा टॉप ते रहूगी, बट इत्थे इन्वर्टिड हो गया। सो ये वाला आंसर भी गलत है, इसलिए इसदा आंसर क्या होगा ए। ठीक है टॉप की चीज़ टॉप ते रहू, बॉटम की बॉटम ते रहू। जिहड़ी चीज़ इत्थे नेड़े है जिवें मर्जी नेड़े होवे, जिवें आ वी इत्थे नेड़े बनाया तो इत्थे भी वी है जिहड़ा वो नेड़े आऊगा। ठीक है बस एवें याद रख लो। सो अज की वीडियो दे विच इन्ना ही। फर्दर अपडेट्स दे लई चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नूं क्लिक करो। अगर वीडियोज़ अच्छियां लगदियां उन्हां नूं लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू सो मच।